میں فیض صغیر میری چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ غلاموں میں اگر تم خیر دیکھو تو ان کو مکاتب بناؤ اور ان کو اللہ کا وہ مال دو جو اللہ نے تم کو عطا کیا۔ تو یہ مال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس دنیا کے اندر دو طریقے زیادہ رائج ہے، ایک کیپیٹلزم اور دوسرا سوشلزم۔ کیپیٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام جو یورپ امریکہ وغیرہ چلاتا ہے، اور یہ ہر ایک دولت حاصل کرنے کے طریقے اور اس کو استعمال کرنے کے طریقے میں آزاد چھوڑتا ہے کہ جس طریقے سے تمہیں دولت حاصل کرنا ہے کرو۔ اور دوسرا سوشلزم جس کے اوپر رشیا، چین وغیرہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ نظام فیل بھی ہو گیا ہے، چلا بھی نہیں۔ ان لوگوں کا سوچنا یہ ہے کہ یہ دنیا کی جتنی دولت ہے یہ تمام کی تمام لوگوں کے درمیان مشترک ہے، لہذا کوئی بھی آدمی کسی زمین کا مالک نہیں، عمارت کا مالک نہیں، فیکٹری کا مالک نہیں، کھیتوں اور باغات کا مالک نہیں۔ تمام کی حکومت سرکار کی رہے گی، اور سرکار اور حکومت یہ تمام ملکیتوں کا مینجمنٹ کرے گی، اور ہر ایک کو کام برابر تقسیم کرے گی، اور ہر ایک کو برابر آمدنی بھی دے گی۔ گویا کہ ایک بڑے سے بڑا انجینئر ہو اور ایک چھوٹے سے چھوٹا کاریگر ہو، دونوں کی تنخواہ برابر ہوگی۔ اس طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ سب کی ملکیت برابر، اور یہ دونوں نظام فیل ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ایک نظام جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے دولت حاصل کرنا ہو، کمائی کے جتنے طریقے ہیں اس کے اندر اس بات پر تو سب نظام کا اتفاق ہے، چاہے سوشلزم ہو کیپیٹلزم ہو، دونوں یہ اتفاق رکھتے ہیں کہ انسان جن چیزوں کے اوپر اپنا قبضہ جماتا ہے اور جو دولت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قدرتی وسائل کے اوپر، انسان نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ انسان کھیتی کرے گا تو اس کے اندر مٹی اور پانی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ نہ ہم نے پانی کا قطرہ بنایا اور نہ ہم مٹی کی چھوٹی سی ایک ڈلی بھی ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، ہم کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ ہم زمین سے غلہ، پیداوار، پھل فروٹ وغیرہ حاصل کرتے ہیں، اور زمین ہی سے کان وغیرہ نکلتی ہے، لوہا، پیتل، تانبا وغیرہ، اور جتنے رسائن ہے وہ تمام کے تمام زمین سے نکلتے ہیں، اور انسان ان چیزوں کے جوڑ اور توڑ اور تحلیل اور ترکیب کر کے یہ سب چیزیں بناتا ہے۔ چاہے انسان برتن بناتا ہو، گاڑیاں اور موٹر کار بناتا ہو، چاہے وہ کھلونے بناتا ہو، اور چاہے وہ ایئر اور پلین بناتا ہو، اور چاہے وہ موٹر کار بناتا ہو، اور چاہے وہ بم بناتا ہو، اور چاہے لڑائی کے جتنے ہتھیار بناتا ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کانیں ہیں، اس کی دھات وغیرہ کو جوڑ توڑ کر کے انسان بناتا ہے۔ تو جب یہ پیداوار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ دو نظام اسلامی نظام سے ٹکرا رہے ہیں، اور چونکہ
मुसलमानों ने इसके अंदर कोई बराबर इतना हिस्सा नहीं लिया, इसलिए इस्लामी निज़ाम आगे नहीं आ सका। पाकिस्तान के अंदर उलमाए किराम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, मुफ्ती तकी साहब उस्मानी ये इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर मौलाना खलील सज्जाद नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ये जो इस्लामी निज़ाम है इसकी पहचान कराते हैं, मुल्कों के अंदर पहचान कराते हैं। मौलाना राबे हसनी जो अभी वफ़ात पा गई, इनकी इकोनॉमी इसको पूरी दुनिया मानती है, लेकिन एक हम मुसलमान हैं कि हम मुसलमानों ने इस निज़ाम को नहीं अपनाया। अब ये जो सरमायादाराना निज़ाम है वो कहते हैं दौलत जिस तरीके से चाहो हासिल करो, जुआ के ज़रिया, सट्टा बाजारी के ज़रिया, और किसी को वो पैसे भी नहीं देते, 2 दिन के लिए भी पैसे दे तो उसके ऊपर सूद लेंगे कि हमें कितना मिलेगा। अपने नफ़े के बगैर ये सरमायादाराना निज़ाम कोई काम नहीं करता। किसी को तिजारत के लिए भी पैसे देंगे तो इसके ऊपर सूद को तलाश करेंगे, कर्जा देंगे तो इसके ऊपर भी सूद तलाश करेंगे। किसी को अगर उधार देते हैं तो इसके ऊपर भी पैसे ज़्यादा लेंगे। और वो लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से किसी को धोखा दे दो तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है, जबकि इस्लाम कहता है कि भाई तुम्हारी मिल्कियत तो है लेकिन इसको हलाल तरीके से हासिल करो, तुम किसी के ऊपर जुल्म मत करो, किसी के ऊपर भाव को पोशीदा मत करो। आजकल जब कोई बाहर से टेम्पू वगैरह लेकर के आता है कि हम कोई बटाका या डुंगरी इसको हम 10-20 रुपये किलो बेचेंगे, तो गांव में से एक आदमी वहां पर जाता है और उनके पास से मुंह मांगे दामों वो खरीद लेता है और गांव में आकर के वो 50 रुपये में बेचता है, और लोगों को लिए बगैर कोई चारा नहीं है। शरीयत ने इससे रोका है कि वो टेम्पो वाला अगर खुद यहाँ पर आता तो तुमको 10-20 रुपये के अंदर गरीब लोगों को मिल जाता, गांव वालों को मिल जाता, लेकिन एक ताजीर ने ऐसा किया और इस टेम्पो वाले से मिल करके गांव वालों के ऊपर भाव को बढ़ा दिया। शरीयत इसको पसंद नहीं करती है। इसी तरीके से इस टेम्पो वाले के ऊपर भाव को पोशीदा रखा कि हमारे गांव में 40 रुपये में आराम से बिक जाएगा, ये पोशीदा रखा और उसके पास से 20-30 के अंदर पड़ा लिया। इसको भी शरीयत पसंद नहीं करती। किसी की मजबूरी का फायदा उठाया, इसको भी शरीयत पसंद नहीं करती। स्टॉक बाजारी कर लेना कि तेल वगैरह को स्टॉक कर लो कि तेल नहीं है, किसी चीज को भी महंगा करना हो तो उसकी स्टॉक बाजारी कर लो और तंगी बनावटी तौर पर तुम पैदा कर दो। अब जब तंगी पैदा होगी तो मार्केट के अंदर इसकी मांग बढ़ेगी और जिस चीज की मांग बढ़ती है तो फिर उसकी कीमतें भी बढ़ जाती है। और मुंह मांगे दाम के अंदर अब तेल 2000 का डिब्बा जब तुम तंगी पैदा कर दोगे तो लोग 3000 में लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से गल्ला अनाज वगैरह के अंदर जिस चीज की भी तुम तंगी खड़ी करोगे वो महंगी हो जाएगी। अगर ये किसान आंदोलन न होता तो ऐसी सूरत में इस मुल्क में ऐसा ही होता कि किसान को वो भाव लेना पड़ता जो मालदार लोग चाहते, इसी भाव पर इनको देना पड़ता। 1-2 साल के लिए वो महंगा भी ले लेते, लेकिन इसके बाद ये लोग महंगा लेकर के इसका स्टॉक कर देते और स्टॉक करने के बाद जो छोटे छोटे बाजार वाले हैं इनके ऊपर ये लोग अपना रौब जमा लेते। माल तो इनके पास जमा है, अब ये लोग जो छोटे छोटे ताजिर है वो अगर किसी चीज का भाव 100 रुपया देना चाहे तो ये जिन्होंने बहुत सारा जखीरा जमा कर लिया है वो कहेंगे कि हम तुम्हें 80 रुपये देने के लिए तैयार है। जब 80 रुपये में लोगों को मिल जाता है तो 100 रुपये में वो क्यों लेंगे। इसलिए
وہ 80 रुपये के अंदर इनके पास से खरीदेंगे, इनके पास लेने वाला कोई नहीं होगा, तो ये छोटे छोटे बाजार वाले मोहताज हो जाएंगे और बड़े बड़े मॉल वालों को उनको देना पड़ेगा, जिस भाव में भी वो मांगे इस भाव के अंदर देना पड़ेगा और वो मोहताज हो जाएंगे। और किसान के पास से जब खरीदेंगे तो सस्ते के अंदर खरीद लेंगे और अपने पर स्टॉक जमा हो गया तो अब 100 का माल 1000 के अंदर भी बेचेंगे। इस तरीके से वो अपनी अगराज के लिए लोगों का खून चूसेंगे और इसको ये लोग जायज़ गर्दानते हैं। सट्टा बाजारी को भी, जुआ खेलने को भी जायज़ गर्दानते हैं। हालांकि एक बैठक पर बैठ करके जुआ के अंदर एक आदमी हार जाता है, इसके बीवी बच्चे बेचारे देखते रह जाते हैं और ये आदमी हजारों का मालिक होता है और गरीब बन जाता है और ये बच्चे भूखे रह जाते हैं। शरीयत इसको पसंद नहीं करती। बैठे बैठे इस तरीके से सट्टा खेलना और इसी तरीके से क्रिकेट वगैरह के ऊपर सट्टा खेलना और कौन सी पार्टी जीतती है इसके ऊपर सट्टा खेलना, ये एक तरीके से पैसों की बर्बादी है। तुम देख रहे हो कि अल्लाह ने इसमें बरकत ही नहीं रखी, इसलिए जितने भी जुआ खेलने वाले हैं सब लोगों को तुमने गरीब बनते तो देखा, लेकिन किसी को भी मालदार बनते नहीं देखा। हालांकि ये माल किसके पास चला जाता है, इसके अंदर कोई बरकत ही नहीं है, वरना कोई तो जीतता और कोई तो इन पैसों के जरिए आगे आता, लेकिन हराम माल के जरिए कोई भी आगे नहीं आता। शरीयत ने रोका है कि किसी के ऊपर भाव महंगा हो जाए इस तरीके से तुम टेम्पो से माल खरीदने के लिए मत जाओ, किसी के ऊपर भाव को पोशीदा मत रखो, सूद को मत लो और किसी गरीब ताजिर को पैसे चाहिए तो तुम उसको पैसे दो, ऐसे ही कर्ज के तौर पर तुम पैसे दो तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको इस कर्जे का सवाब देगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी को कर्ज की मोहलत देते हो कि 1 महीने के बाद हमारा कर्ज दे देना, जब 1 महीना आ गया और ये आदमी कर्जा नहीं दे सका तो अब ये हमारा भाई देखता है कि अब ये बेचारा कर्जा नहीं दे सकता तो वो उसको कहता है कि भाई कोई हर्ज नहीं और 15 दिन के बाद दे देना, तो और जो 15 दिन वो देता है तो उसको सवाब मिलेगा। हर दिन जितने पैसे उसने कर्जा दिए हैं 10,000 25,000 रोजाना इतना सदका करने का सवाब मिलता है। जितनी फिर वो मोहलत देते जाएगा इतना सवाब मिलता है। जबकि सरमायादाराना निजाम कि तुम मौके पर पैसे नहीं देते तो पैसे डबल देने पड़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज इसके ऊपर लगा दिया जाता है और आदमी बेचारा मजबूर हो जाता है कि हम किसी तरीके से खुदकुशी कर ले, और कितने लोग इसके चक्कर में खुदकुशी कर लेते हैं। और सोशल वाला जो निज़ाम है वो हर एक को बराबर करार देता है, तो जब हर एक को बराबर करार देगा तो एक आदमी खेत के अंदर क्यों काम करेगा, वो सोचता है कि मैं खेत के अंदर काम करूं मुझे भी इतने पैसे, और एक आदमी फकत सीजन के अंदर जो सामान है वो इधर से उधर मुंतकिल करे उसको भी इतने पैसे, जो दुकान चलाता है उसको भी इतने पैसे, तो कोई दिल से काम नहीं करेगा। और अपना माल होगा, शरीयत कहती है कि भाई तुम्हारा माल है, लेकिन इस माल में जायज़ तरीके पर तसर्रुफ करो और किसी को धोखा मत दो, किसी को इतना ज़्यादा महंगा मत बेचो कि वो बेचारा गरीब आदमी परेशान हो जाए इतने दाम पर खरीदने के ऊपर। गबन फाहिश किसी पर मत करो, किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, कर्जा ऐसे ही दो और उसके ऊपर सूद वगैरह मत लो और सदका करो। और जो आदमी तुम्हारे घर के अंदर काम करे उसका पसीना खुश्क होने से पहले तुम उसकी
मजदूरी दे दो। इस तरीके से ये शरई निज़ाम बतलाता है। आज ये निज़ाम फ़कत अफ़गानिस्तान अपना रहा है, इसकी इकोनॉमी भी बढ़ गई है, हालांकि गरीब मुल्क है, लेकिन इसकी करेंसी भी और मुल्कों के मुकाबले में बढ़ी हुई है। हालांकि वो बेचारा बहुत ही गरीब मुल्क है, कोई उसको साथ देने वाला नहीं है, लेकिन इस्लामी निज़ाम को चलाता है। और ये इस्लामी निज़ाम अगर दुनिया के अंदर घर कर जाए तो ऐसी सूरत में लोग इसके फ़वाइद को देख लेंगे। लेकिन इस्लामी निज़ाम को इसीलिए नहीं चलने दिया जाता और लोगों को धोखा दिया जाता है और कहा जाता है कि हमारे पैसे हम किसी को ऐसे ही क्यों दे दे, हम इसके ऊपर सूद लेंगे और हम इसके ऊपर नफ़ा बढ़ाएंगे, और इस तरीके से वो फ़ायदे बतलाते हैं। हालांकि फ़ायदा तो किसके अंदर नहीं है। शराब भी तुम पियोगे तो उसके अंदर सैकड़ों नुकसानात के साथ कोई ना कोई फ़ायदा तो होता है, लेकिन उसका नुकसान ज़्यादा है, और जिसका फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा, शरीयत इससे रोकती है। इसी तरीके से सूद वगैरह में भी फ़ायदा यकीनन होगा, लेकिन इसका नुकसान ज़्यादा है। इससे तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएगी, इससे तुम्हारा खून भी गाढ़ा हो जाएगा, और इसकी बिना पर तुम्हारे अंदर हराम की कमाई जो दोज़ख में जलने के लायक होगी वो बनेगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला बतलाते हैं, वआतूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, ये माल जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे जेब के अंदर है, ये अल्लाह का दिया हुआ माल है, ये तुम गुलामों के ऊपर खर्च करो, ये तुम गरीबों के ऊपर खर्च करो। शरीयत कहती है कि बस आखिरत का तुम सवाब देखो, फ़कत अपना ही मत देखा करो। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जैसे गरीब मुल्कों के अंदर ये बात दी है कि एक गरीब आदमी भी किसी परेशान आदमी को, कोई अगर भूखा होगा तो उसको खाना पीना दे देगा, बल्कि जानवरों को भी ये खाना खिलाएंगे और पिलाएंगे। और हमारा यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला जानवरों को भी भूखा नहीं रखते। हालांकि इनका कोई गोडाउन नहीं है, इनकी कोई मार्केट नहीं है, लेकिन कोई भी जानवर भूखा नहीं मरता। अरे और जानवरों को तुम बांधते हो घरों के अंदर और तुम खिलाते हो, लेकिन वो जानवर तो देखो, कुत्ते और बिल्ली जिनको हम डंडा लेकर के भगाते हैं, लेकिन वो भी भूखे नहीं मरते। हालांकि इसको कोई खाना नहीं देता और हर एक बिल्ली वगैरह से हिफाजत करने के लिए एक डंडा रखता है और उसको भगाता है, लेकिन अल्लाह उसको भी भूखे नहीं मारता। तो हम तो इंसान है, अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों के ऊपर हम चलेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भूखा नहीं रखेगा। चाहे तुम हलाल कमाओगे, हराम कमाओगे, रोज़ी तो अल्लाह तबारक व तआला हर एतबार से देगा, लेकिन हराम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला तुमको सज़ा देगा और हलाल के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला तुमको जज़ा देगा और बेहतरीन बदला देगा। वला तुकरिहू फतयातिकुम, और अपनी बांदियों को मजबूर मत करो अलल बिगा, जीना के ऊपर। इन अरदन तहस्सुना, अगर वो पाक दामन रहना चाहे, और तुम क्यों मजबूर करते हो, लितब्तगू अरदल हयाती दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी का सामान चाहते हो। पहले अरब लोग ऐसा करते थे कि जो अपनी बांदियाँ होती थी इनको जीना के लिए किसी खेमे के अंदर बंद कर देते थे और मखसूस उसके ऊपर झंडी लगा देते थे, तो सब लोग आते थे और पैसे दे करके इनके साथ जीना करते थे। हालांकि इनमें बहुत सारी औरतें मुसलमान हो चुकी थी और ये नहीं चाहती थी जीना करना, तो भी ये मुशरिक लोग और ख़ास करके अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिक, इसकी जो बांदियाँ थी जो मुसलमान हो चुकी थी, लेकिन ये मजबूर करता था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म नाजिल फरमाया कि अपनी बांदियों को तुम जीना के ऊपर मजबूर करते हो। हालांकि वो पाक दामन रहना चाहती है, तो औरत तो पाक दामन रहना चाहिए और तुम जीना पर मजबूर करो। होना तो ये चाहिए था कि तुम्हारी बांदियाँ जीना करे तो तुम उनको रोको, बल्कि यहाँ तो मामला उल्टा हो रहा है कि वो पाक दामन रहना चाहती है मुसलमान बांदियाँ और तुम जीना कराते हो इसके पास ताकि दुनियावी जिंदगी का सामान चाहो। तो ये तुम्हारी गैरतें कहाँ मर गई है और तुम किस तरीके से बेशर्मी के ऊपर उतर आए कि अपनी बांदियों के पैसों
पैसे खाने के लिए तुम इनको जीना पर मजबूर करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमन युक्रिहुन्न फइन्नल्लाह मिन बादि इकराहिहिन्न गफूरुर रहीम, जो इन औरतों को मजबूर करेगा तो अल्लाह इनको मजबूर करने के बाद माफ़ करने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। बांदियों को चाहिए कि हत्तल इम्कान वो जीना से बचे, और अगर इनके आका इनको मजबूर करते हैं और कोई इनके पास रास्ता नहीं होता तो बेचारी औरत मजबूर है, तो मजबूरी की बिना पर अगर वो तैयार हुई तो अल्लाह जानता है कि ये खुशी से तैयार है या मजबूरी की बिना पर। अगर वो मजबूर की गई है तो अल्लाह इनके लिए गफूर रहीम है, इनको माफ़ कर देगा। वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिम मुबय्यिनात, हमने तो वाज़ेह आयतें तुम्हारी जानिब नाजिल की कि अल्लाह ताला ने कितनी खोल खोल करके ये आयतें बयान की, इस्तेजान को बयान किया और जीना के अहकाम, नज़र झुकाने के और जो महारिम के साथ आने के मसाइल और जो गुलाम बांदियों के साथ ताल्लुक़ रखना है इसके मसाइल, और इनको जीना के ऊपर मजबूर करके कमी इनकी हरकत मत करो, ये तमाम मसाइल हमने खोल खोल करके बयान किए। व मसलम मिनल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, और हमने ऐसी आयतें नाजिल की कि जिसके अंदर बयान है उन लोगों का जो तुमसे पहले गुजर चुके, तुमसे पहले जो गुजर चुके इन लोगों का इसके अंदर बयान आ गया। पाक दामनी जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की थी, जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाक दामनी थी, वो हमने बयान की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा माँ उम्मुल मुमिनीन के हमने पाक दामनी बयान की, और अगले लोगों के किस्से बयान किए। ये नसीहत है मुत्तकीन के लिए। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है। अल्लाह तबारक व तआला एक नूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपने सबे मेराज में अल्लाह को देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नूरुन अन्ना उराहू, अल्लाह तो नूर है, वो कैसे मैं देख सकता हूँ। हिजाबुहु अन्नूर, उसका हिजाब नूर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तो अल्लाह की जात है, दूसरा उसके ऊपर हिजाब है। तो जो अल्लाह की जात है इसको तो कोई नहीं देख सकता कियामत के बगैर। जब कियामत आएगी तो अल्लाह ताला इन आँखों में देखने की ताकत पैदा करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह को देख नहीं सकते यहाँ तक कि तुम मर जाओ। जब तुम मर जाओगी तो अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के दिन तुम्हें अपनी ज़ियारत कराएगा। तो फरमाया कि तमाम लोग देखेंगे, अव्वलीन भी देखेंगे, आखिरीन भी देखेंगे, मोमिनीन देखेंगे, जिन्नात भी देखेंगे, इंसान भी देखेंगे, अव्वलीन और आखिरीन तमाम देखेंगे। और किसी को देखने के अंदर एक दूसरा आड़े नहीं आएगा कि ज़रा हटो मैं देख लूँ। आज हम किसी को देखना चाहते हैं स्टेज के ऊपर तो कोई ना कोई आड़े आ जाता है और हम बराबर नहीं देख सकते बड़ा मजमा। तो इतना बड़ा मजमा अल्लाह को कैसे देखेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दो मिसालें बयान की और फरमाया कि अगर सूरज हो और दिन के अंदर कोई बदली ना हो, साफ बादल हो, तो सूरज को देखने के अंदर तुम कोई धक्का मुक्की करते हो, पूरी दुनिया सूरज को आराम से देख लेती है। और इसी तरीके से दूसरी मिसाल बतलाई कि 14वीं का चांद हो और कोई बादल वगैरह ना हो और तमाम लोग देखना चाहते हो तो क्या तुम धक्का मुक्की करते हो। कहा कि नहीं, फरमाया इसी तरीके से तुम अल्लाह को देखोगे, लेकिन इस दुनिया के अंदर तुम अल्लाह को नहीं देख सकती। और हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने हिजाब के अंदर देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी आँखों के ऊपर हिजाब लगा दिए हैं। अगर ये हिजाब ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला का नूर उन तमाम चीज़ों को जला करके राख कर दे जहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला की निगाह जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला के नूर का जलाल तमाम को खाक कर दे, इतना नूर है। इस बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी आँखों पर हिजाब रखा है, इसकी जात के ऊपर कोई पर्दा नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला नूर मुजस्सम है। और हम मानेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला
किसी मिसल के बगैर है, बिला कैफियत के हम अल्लाह तबारक व तआला को मानेंगे। हम इसकी कोई शक्ल सूरत नहीं मानते, बस क़ियामत के दिन हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत करेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला को हम अच्छी तरीके से पहचान जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन और आसमान का नूर है, खुद नूर है, और उसी के नूर से ये पूरी की पूरी दुनिया नूर से मुनव्वर हुई है, ये अल्लाह के नूर की बिना पर हुई है। और ये नूर आँखों के अंदर एक कैफियत है, आँखों के अंदर जब अल्लाह तबारक व तआला इस नूर की कैफियत को हमारे अंदर रखता है तो इसके ज़रिए हम चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि ये सूरज की किरणें और ये चाँद की किरणें दुनिया की अशिया के ऊपर पड़ती है और ये किरणें मुनअकिस होती है, किरणें उलट करके हमारी आँखों के अंदर आती है तो हम इन चीज़ों का इदराक करते हैं। अगर हम ये सूरज की रोशनी किसी तरीके से भी आना बंद कर दी तो हमें आँखों के नूर होने के बावजूद कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बल्कि अभी हम पर्दे चारों तरफ लगा दे, दबीज पर्दे कि कोई रोशनी ना आए तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इस सूरज की बिना पर सूरज की किरणें मुनअकिस होती है, तब जा कर के ये चीज़ें रोशन हो कर के हमारी नज़रों के अंदर आती है, और हमारी नज़र में भी तब आएगी जब अल्लाह ने नूर रखा हो। वरना एक अंधा आदमी जिसके अंदर नूर नहीं रखा वो सूरज की रोशनी के बावजूद भी नहीं देख सकता। तो एक तो हमारी आँखों के अंदर अल्लाह ने एक कैफियत पैदा की है जिससे हम रोशनी को देख सकते हैं, और दूसरा चीज़ों के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो इन रोशनी के इनेकास के जरिए हम चीज़ों को देखते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरीके से पूरी दुनिया को रोशन किया है। तो अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है, यानी आसमान और ज़मीन को रोशन करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी तरह जिस्म और जिस्मानियत से और हमारी तरह आँख वगैरह से पाक है। वो देखने वाला तो है लेकिन इसकी आंखें हमारी तरह नहीं है, बस अल्लाह की शायान शान है। वो सुनने वाला है लेकिन इसके कान उसकी शायान शान है, बस अल्लाह की शायान शान सब कुछ है। हम कोई भी कैफियत अल्लाह की बयान नहीं करते, बस वो एक नूर मुजस्सम है और ज़मीन व आसमान को उसने नूर बनाया है। तो ये आयत नूर है और इसी बिना पर इस सूरत को भी नूर कहा जाता है। तो इस आयत नूर के ऊपर सूरह नूर को मस्जिद नूर के अंदर इंशाअल्लाह हम उसका इख्तिताम करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान और ज़मीन का नूर है, और उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक ताकचा जिसके अंदर चिराग हो। मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा, और वो चिराग किंडील के अंदर हो। अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन, और वो किंडील गोया कि एक रोशन सितारा हो। और यूक़दु मिन शजरतिन मुबारका, जो मुबारक दरख्त से जलाया जाता है, और वो मुबारक दरख्त ज़ैतूनतिन ज़ैतून है। ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या, न मशरिकी जिहत में है न मग़रिबी जिहत में है। यकादु ज़ैतुहा युदीउ वलौ लम तमससहु नार, और उसका तेल तो रोशन कर देगा दुनिया को अगरचे उसको आग न छुए, और आग छू ले तो नूरुन अला नूर, रोशनी के ऊपर रोशनी हो जाएगी। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह अपने नूर की हिदायत देता है जिसको चाहे। वयदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, अल्लाह लोगों के सामने मिसाल बयान करता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह तबारक व तआला तमाम चीज़ों को जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला खुद तो नूर मुजस्सम है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दिलों के अंदर जो नूर ईमान रखा है, यहाँ पर उसकी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला इन अरब बद्दुओं को और इन सहाबाए किराम को बतला रहा है जिनके सामने ये लाइटें नहीं थी, जिनके सामने टॉर्च वगैरह नहीं थी। इनके सामने एक ऐसे लोगों के सामने जो बिल्कुल सीधे सादे थे, वो इनके सामने अल्लाह ने बयान किया कि एक ताकचा है और इस ताकचे के अंदर चिराग रखा हुआ है। पहले लोग
ताकचों के अंदर चिराग रखते थे, इसलिए कि रोशनी जब सिमट जाती है तो इसकी रोशनी और ज़्यादा फैलती है। इसलिए हम देखते हैं कि हम जो टॉर्च रखते हैं इसके ऊपर हम कांच लगा देते हैं या कोई कचकड़ा वगैरह, ताकि रोशनी और फैले। बल्ब को देख लो, इसी तरीके से ये ट्यूबलाइट को देख लो, इसकी रोशनी को एक डंडी के अंदर सिमटा लिया गया है, पाइप के अंदर सिमटा लिया गया है। इसी तरीके से छोटे छोटे बल्ब होते हैं, इनको भी एक कांच के शीशे में सिमटा लेते हैं तो इसकी रोशनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने जो मोमिनों के दिल में नूर ईमान रखा है वो ऐसा समझ लो कि एक चिराग जल रहा है, उस जमाने में चिराग ही था। और फरमाया कि वो चिराग किंडील के अंदर हो, वो चिराग भी किंडील के अंदर। तो एक तो ताकचा है, रोशनी सिमट गई, और फिर वो चिराग जो इस ताकचे के अंदर है वो किंडील के अंदर रखा हुआ है, शीशे का ज़र्फ रखा हुआ है, और शीशे का ज़र्फ होगा तो रोशनी और ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे हम ट्यूबलाइट के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर बहुत ही चमकदार क्रोमियम वगैरह होता है ताकि इसकी रोशनी और ज़्यादा बढ़े। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो चिराग समझो कि ताकचे में, वो चिराग किंडील में रखा हुआ है, और किंडील गोया के चमकदार सितारा, इसका क्रोमियम चमकदार सितारे की तरह। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन के दिल के अंदर जो नूर ईमान रखा है वो गोया के एक चिराग है, एक मोमबत्ती है। और वो मोमबत्ती अल्लाह तबारक व तआला ने किंडील के अंदर रखी है, तो वो किंडील मोमिन का दिल है जो कि बहुत ही ज़्यादा रोशन है, सितारे की तरह रोशन है। और इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फितरी हमारा जो नूर ईमान है, हर एक को पैदा करने के वक्त अल्लाह ने नूर दिया है। अगर कोई नबी न भी आता तो भी लोग अल्लाह को पहचान लेते, इतना नूर रखा है। ये फितरी नूर अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारे दिल के अंदर रखा है, इसकी मिसाल ऐसी दी कि वो ऐसे किंडील के अंदर है कि वो किंडील बहुत ही ज़्यादा रोशन है। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इस चिराग को जो हम जलाते हैं तो इसको जलाने के लिए हमने जो तेल रखा वो जैतून का तेल। जैतून का तेल इतना साफ शफाफ होता है कि इसके अंदर धुआं कम और रोशनी ज़्यादा होती है। और ख़ास करके वो जैतून ला शर्क़िया वाला गरबिया, बिल्कुल मशरिक के अंदर कोई आड़ न हो जिससे सुबह के वक्त भी उस पर रोशनी पड़े, और मगरिब की जिहत में भी कोई आड़ न हो जिसकी बिना पर मगरिब की जानिब से भी रोशनी पड़े। वरना मगरिब की जानिब कोई आड़ है और यहाँ पर ये दरख्त है तो अब मगरिब के वक्त इस पर रोशनी नहीं पड़ेगी। लेकिन खुले मैदान के अंदर हो तो मशरिक के वक्त भी उस पर रोशनी और मगरिब के अंदर भी उस पर रोशनी। और अगर मशरिक में कोई आड़ हो तो सुबह के वक्त रोशनी नहीं, मगरिब में आड़ हो शाम के वक्त रोशनी नहीं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि वो जैतून न मशरिक में कोई आड़ है न मगरिब में, हमेशा इसके ऊपर सूरज की धूप रहती है। तो ये जो जैतून होता है वो बहुत लतीफ़ हुआ करता है और ये जल्दी से आग को पकड़ लेता है। कितना जल्दी कि यकादु ज़ैतुहा युदिउ, ऐसा लगता है कि ये जैतून आग पकड़ लेगा, अगर से आग न छुए तो भी आग पकड़ लेगा। जैसे कि पेट्रोल ऐसा लगता है कि अभी आग पकड़ लेगा, इसलिए आग से बहुत ज़्यादा दूर रखा जाता है पेट्रोल पंप वगैरह के ऊपर, क्योंकि ये आग जल्दी पकड़ लेता है। जैतून इससे भी जल्दी आग को पकड़ लेता है, आग के बगैर भी ऐसा लगता है। और अल्लाह ने फरमाया कि अब ये चिराग जो कि हमने लगाया है किंडील के अंदर, और वो किंडील वाला चिराग जो है वो ताकचे के अंदर हो, रोशनी बराबर सिमट गई, और उसका जो ईंधन है वो केरोसिन और कड़वा तेल नहीं बल्कि जैतून का ईंधन रखा है।
تو اور زیتون تو ویسے ہی جل جائے ایسا لگتا ہے، اب اس کو آگ لگے اور وہ بھی ایسے چراغ میں جو کنڈیل میں ہے اور کنڈیل تاکچے کے اندر ہے، تو وہ روشنی کتنی زیادہ پھیل جائے گی۔ نورن علی نور۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ وہ جو اس کا دل ہے وہ کنڈیل ہے اور اس کا سینہ جو ہے وہ تاکچہ ہے، اور جب اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے تو یہ وحی کا ایندھن زیتون کے تیل کی طرح ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ دنیا کو روشن کر دے گا۔ لیکن یہ جب فطری نور اس وحی ربانی کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ فطری نور اور اللہ کی وحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، یہ جب دونوں ملتے ہیں تو نور علی نور ہو جاتا ہے، اور اسلام کی روشنی، کلمے کی روشنی پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے اور علم و عمل کا نور بڑھ جاتا ہے۔ اس نور کی جانب اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ایک تو فطری نور، یہ تو ہر ایک کو دیا، مومن کو بھی کافر کو بھی۔ مومن اس کی حفاظت کرتا ہے، کافر اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ پھر یہ نور جو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعہ ہم کو جو پہنچاتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، تو اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اس کو یہ نور دیتا ہے اور اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ مثال دے کر کے اللہ لوگوں کو سمجھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور جاننے والے سے زیادہ کوئی سمجھا سکتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت نور کو ہمیں سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعہ وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک ویا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم گنہگار ہیں، مجرم اور خطاوار ہے، اقراری مجرم ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ قرآن مجید کا ایک مقدس درس تھا جس کا تو نے ہم کو موقع دیا تھا، لیکن یا اللہ ہم قدردانی نہیں کر سکے، نہ اچھی طریقے سے بیان کر سکے، نہ اچھی طریقے سے سن سکے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بہت ہی ہماری کوتاہیاں ہوئی ہے، تو معاف فرما دے۔ لیکن یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس قرآن کی جو نصیحتیں ہیں تو ہمارے دل کے اندر جاگزی فرما دے، اور اس قرآن کی نصیحتوں کی بنا پر دیگر نصائح کو قبول کرنا اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان بنا دے، پورے قرآن کو سمجھنا آسان بنا دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ایک مردہ ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس رمضان کی کیا قدر ہے، وہ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں ایک وقت بھی مل جائے تو ہم اس کی قدر کر لیں، لیکن یا اللہ ہم زندہ ہونے کے باوجود اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں وہی قدر عطا فرما جو ایک مردے کو ہوتی ہے، جو ایک حسرت زدہ کو ہوتی ہے، جو اللہ والوں کو ہوتی ہے۔ یا اللہ تیرے جو اللہ والے ہیں اور روشن ضمیر ہے، یا اللہ ان کے دل میں جو رمضان کی قدر ہے وہ قدر ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے قدری کی ہے تو ہمیں معاف فرما، رمضان کی پوری برکات تو ہمیں عطا فرما اور روزوں کی برکات تو ہمیں عطا فرما، اور یا اللہ اعتکاف کرنے والوں کو تو پورا صلہ عطا فرما، اور یا اللہ انہوں نے جو فرض کفایہ ادا کیا ہے یا اللہ تو ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، اور یا اللہ روزے رکھنے والوں کو، بھوک برداشت کرنے والوں کو، بھلے یا اللہ ہم نے کوتاہی کی ہے لیکن یا اللہ تو ہمیں قبول فرما، اور ہماری تلاوتوں کو کیسی بھی ہو تو قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ایک باپ کو چھوٹا بیٹا کیسی بھی چیز گندی بھی دیتا ہے لیکن باپ قبول کر لیتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہم بھی اسی طریقے سے ایک کچا اور گندا مال تیرے پاس لائے ہیں۔ یا اللہ ہم عبادتوں کی پونجی زیادہ نہیں
تو یا اللہ ہم نے فرض روزے تیری بارگاہ میں پیش کیے ہیں، نمازیں پیش کی ہے، تراویح پیش کیا ہے، یا اللہ ہم نے کیسا بھی پڑھا لیکن تو اسے قبول فرما، اپنی رحمت سے قبول فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تو اسے قبول فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اصحاب بدریین کے صدقے میں تو قبول فرما، اور یا اللہ ہم تمام کی تمنائیں تیرے سامنے ہے، ہماری تمنائیں تو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے، یا اللہ ہم تمام کی تمنائیں پوری فرماؤ، ہماری جھولیوں کو بھر دو، یا اللہ آپ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اور دے گا تو بھی وہ تو تھک جائے گا اور ہم کو کہہ سنائے گا، یا اللہ ہم تیرے پاس مانگتے ہیں تو بے حساب دینے والا ہے، اور یا اللہ تو حساب بھی نہیں کرتا، تو احسان بھی نہیں جتلاتا، مانگنے سے خوش ہوتا ہے بلکہ نہ مانگنے سے تو ناراض ہوتا ہے، یا اللہ ہماری مصلحت کی جتنی چیزیں ہیں وہ تم ہمیں عطا فرما، اور آج تک تیرے نیک بندوں نے جو بہترین چیزیں مانگی ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور جن چیزوں سے تیرے نیک بندوں نے پناہ چاہیے اس سے پناہ عطا فرما، اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو جو مانگا ہے وہ ہمیں عطا فرما، جن سرور و فتن سے پناہ چاہیے اس سے پناہ عطا فرما، اور قرآن اور احادیث کے ساتھ سچی محبت اور سچا شغف عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں تیری محبت ہمیں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ تو ہمیں عطا فرما، تمام لوگوں سے تیری محبت زیادہ عطا فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، عشق اور اتباع تو ہمیں عطا فرما، اہل بیت کی محبت تو ہمیں عطا فرما، بزرگان دین کی محبت تو ہمیں عطا فرما، اور یا اللہ تو ان صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور انبیاء کرام ان تمام کے صدقے میں ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور تو اپنی رحمت سے ہمیں زیادہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔